بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے آج 10ویں 11ویں اور 12ویں قسم کون کون سی؟ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کون کون سی؟ جمع مذکر سالم 10ویں قسم کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم، اور 11ویں قسم اولو، اور 12ویں قسم اشرونہ، 12ویں قسم اشرونہ۔ جمع مذکر سالم جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جمع تصحیح کے اندر، جمع تصحیح کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی۔ جمع تصحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا مفرد جس سے جمع بنائی جائے، ایسا مفرد جس سے جمع بنائی جائے اور مفرد کی بنا بھی سلامت رہے، مفرد کی بنا سلامت رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون سے مسلمون، داربون سے داربون۔ تو جمع مذکر سالم یہ جمع تصحیح کی قسم ہے، جمع تصحیح کی کون سی ہے؟ قسم ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم ہے، جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ مفرد کے آخر میں شرط ساتھ مفرد کی ہے۔ آگے آپ کو سمجھاتا ہوں، شرط کس کی ہے؟ مفرد کیا ہے کہ مفرد کے آخر میں واو نون ہو یا نون ہو، واو ما قبل مضموم نون مفتوح، یا ما قبل مکسور نون مفتوح، جیسے لفظ مسلمن، مسلمن، اب یہ مفرد ہے، انہوں نے کہا نا کہ مفرد کے آخر میں تو جمع وہی ہوگا جس کا مفرد ہوگا، جس کا مفرد نہیں ہوگا وہ جمع نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو 2 سے زائد پر اس طرح دلالت کرے کہ مفرد کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ کیا جائے تو جمع مذکر سالم بن جائے، جیسے مسلمون سے مسلمون سے، اگر مسلمون کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ مسلمون۔ اسی طرح یا نون کا اضافہ کیا تو کیا بن جائے گا؟ مسلمین۔ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت جری میں، یہ حالت رفع وہ ما قبل مضموم، یہاں حالت نصب اور جری یا ما قبل مکسور نون مفتوح۔ یہاں آپ ایک قاعدہ یاد کرنا کہ جب جمع مذکر سالم کسی یا کی طرف اگر اضافت ہو یا کسی کی طرف بھی اضافت ہو، جمع مذکر سالم کی جب اضافت کی جائے تو اس وقت نون کیا ہو جاتا ہے؟ جمع کا گر جاتا ہے، نون کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، جیسے مسلمین سے یا مسلمون سے مسلمویا، اگر اس کی اضافت کی جائے، اگر اس کی یا کی طرف اضافت کی جائے تو اس کے اوپر جو اعراب لگے گا وہ 16ویں قسم والا لگے گا۔ کون سا لگے گا؟ 16ویں قسم کا اعراب کیا ہے؟ کہ حالت رفع و تقدیری کے ساتھ، حالت نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ، حالت نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ۔ جب یہ مضاف نہیں ہوگا اس وقت اس کا اپنا اعراب لگے گا، کون سا ہے؟ حالت رفع و ما قبل مضموم، حالت نصب اور جر یا ما قبل مکسور، حالت نصب اور جر یا ما قبل مکسور۔ تو یہ اس جمع مذکر سالم کی سمجھ آ گئی کہ وہ اسم جو 2 کے اوپر یعنی 3 سے مل کر بنے، لیکن اس طرح بنے کہ اس کے مفرد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جائے یا نون کا اضافہ، یعنی کہ آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جمع جو ہوگا، جمع وہی ہوگا جس کا مفرد ہوگا، جمع وہی ہوگا جس کا مفرد ہوگا، اگر مفرد نہیں ہے پھر وہ جمع نہیں ہوگا، اب سوال پیدا ہوتا ہے اولو اور اشرونہ، اولو اس کا مفرد نہیں ہے، اولو جو ہے نا اس کا مفرد نہیں ہے، کہتے ہیں اولو زو کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ زو کی جمع ہے۔ اب لفظ زو، اب زو اور اولو کے لفظوں کے اندر فرق ہے، زو اور اولو کے لفظوں کے اندر یا الف واو لام واو ہے، یا زال اور واو ہے، لفظوں میں فرق ہے،
मालूम ये होता है कि माना के एतबार से, किसके एतबार से, माना के एतबार से उलू जो है ना जू के माना में जमा किया, ये जू के माना में है, लेकिन लफ्ज़न ये जहाँ जू के माना में जू की तरह नहीं है, जू की तरह नहीं। इसी तरह सवाल होता है भी इशरूना, इशरूना, हमने कहा कि इशरूना ये जमा नहीं है, ये जमा नहीं है, हकीकतन जमा नहीं है। हकीकतन जमा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मुफरद नहीं है, इसका मुफरद नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है भी इशरूना का मुफरद तो अशर है, आशा आशरा मुफरद है, इसका आशरा इसका मुफरद है। हमने कहा आशरा, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आशरा मुफरद है, लेकिन आशरा के इस्तेमाल से कौन मुराद है? 10। आशरा का इस्तेमाल 10 पर होता है और जमा जो उसका इस्तेमाल तो 3 पर होता है, कम से कम 3 पर होता है और या 3 से ज्यादा पर होता है। अगर इसको आशरा को हम इसका मुफरद मानते हैं, इसका इस्तेमाल तो 10 पर हो रहा है, अगर 10 के हिसाब से देखा जाए तो ये 30 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा, फिर ये 20 तो नहीं बनेगा। तो मालूम ये हुआ इशरूना आशरा की जमा नहीं है, इशरूना आशरा की जमा नहीं है। तो अब आते हैं इसके इराब की तरफ। इन तीनों का इराब एक ही है, जमा मुज़क्कर सालिम 10वीं किस्म, 11वीं किस्म उलू और 12वीं किस्म इशरूना, इन तीनों का इराब एक है। क्या इराब है? हालत रफ़ी व मा क़बल मज़मूम, हालत रफ़ी व मा क़बल मज़मूम, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, नस्बी और जरी या माकल मकसूर और नूने मफ्तू, जैसे मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मिसाल जैसे जानी मुस्लिमूना उलू मालिन व इशरून रजुलन, जानी मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरून। अब यहाँ जानी मुस्लिमूना ये हालत रफ़ी में है, ये हालत रफ़ी में है। राई तो मुस्लिमीना उली मालिन व इशरीन रजुलन, ये हालत नस्बी और जरी या माकबल मकसूर के साथ है। मररतु बे मुस्लिमीना, मररतु बे मुस्लिमीना उली मालिन व इशरीन रजुलन, ये भी हालत नस्बी और जरी या माकबल मकसूर के साथ है। तो क्या पढ़ा? इसमें मुतमक्किन की वजूह इराब के एतबार से 10वीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम और 11वीं किस्म उलू और 12वीं किस्म इशरूना। इशरूना जो है ना, इशरूना इसका 90 तक, यानी इशरूना सलासूना अरबाउना खमसूना सित्तूना सबूना सिमानुना तिसूना 90 तक, ये क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम वाला इराब इनके ऊपर लागू होगा। इशरूना से लेकर 20 से लेकर 90 तक जो ये गिनती है ना, कि कौन सी दिहाई वाली, यानी इशरूना हो गया, सलासूना अरबाउना, इनके ऊपर इराब कौन सा आएगा? जमा मुज़क्कर सालिम का। आगे है 13वीं किस्म। 13वीं किस्म क्या है? इसमें मकसूर। क्या है? इसमें मकसूर, इसमें मकसूर। इसमें मकसूर की तारीफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसके बाद हमजा ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा लंबा करके नहीं पढ़ा जाता। जैसे लफ्ज़ मुस्तफ़ा, क्या? मुस्तफ़ा कौन सा लफ्ज़ है? और इसकी तारीफ क्या है? वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। लफ्ज़ कौन सा है? मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। इसी तरह आगे क्या है? 14वीं किस्म। 14वीं किस्म कौन सी है? गैर जमा मुज़क्कर सालिम। गैर जमा मुज़क्कर सालिम जब क्या हो? या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ। यहाँ दो चीज़ें आ गई हैं। गैर जमा मुज़क्कर सालिम यानी कि ऐसा इसम जो मुज़क्कर जमा मुज़क्कर सालिम ना हो। गैर जो है ना, ये नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। गैर किसके लिए इस्तेमाल होता है? नफ़ी के लिए। ये नफ़ी कर रहा है कि जमा मुज़क्कर सालिम ना हो या जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा ऐसा इसम जो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा या मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुज़ाफ हो, या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। लफ्ज़ गुलाम, गुलाम। अब ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है। अब इसके साथ हमने या मुतकल्लिम लगानी है। इसम तो है लेकिन क्या लगाना है? या मुतकल्लिम। जब इसके साथ या मुतकल्लिम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा?
गुलामी, क्या बन जाएगा? गुलामी। इन दोनों का इराब एक है, इन दोनों का इराब एक ही है। किस किस का? इसमें मकसूर का और गैर जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, इन दोनों का इराब एक है। हालत रफ़ी ज़मा तकदीरी के साथ, हालत नस्बी और जरी, हालत नस्बी फतह तकदीरी के साथ, हालत जरी कसरा तकदीरी के साथ। इसे मोरब हरकात सलासा तकदीरी कहते हैं, मोरब हरकात सलासा तकदीरी कहते हैं। पहले भी आप एक पढ़ चुके मोरब हरकात सलासा लफ्जी कौन सी किस्म है? इसम मुतमक्किन की पहली किस्म मुफरद मुनसरफ से, जारी मजरा से, जमा मुकस्सर मुनसरफ। उन तीनों का इराब था मोरब हरकात सलासा लफ्जी। अब यहाँ जो है ना, इन दोनों का इराब क्या है? मोरब हरकात सलासा तकदीरी, हालत रफ़ी जमा तकदीरी के साथ, हालत नस्बी फतह तकदीरी के साथ, हालत जरी कसरा तकदीरी के साथ। तो इसका मिसाल क्या आएगी कि जा मूसा गुलामी, राही तो मूसा गुलामी, मरार तो बे मूसा गुलामी। जा मूसा गुलामी, राही तो मूसा गुलामी, मरार तो बे मूसा गुलामी। इन दोनों किस्मों का इराब एक ही है। इसमें मकसूर और गैर जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुज़ाफ हो। क्या इराब है? हालत रफ़ी जमा तकदीरी के साथ, हालत रफ़ी जमा तकदीरी के साथ, हालत नस्बी फतह तकदीरी के साथ, हालत जर कसरा तकदीरी के साथ। इन तीनों का मजमुआ क्या है? मोरब हरकात सलासा तकदीरी, मोरब हरकात सलासा। मिसाल जैसे जानी मुस्तफ़ा गुलामी, राई तो मुस्तफ़ा गुलामी, मररतु बे मुस्तफ़ा गुलामी, मररतु बे मुस्तफ़ा गुलामी। आज कितनी किस्में पढ़ी हैं? 5। कितनी किस्में पढ़ी हैं? 5। कौन कौन सी? 10वीं किस्म मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम, और 11वीं किस्म उलू, 12वीं किस्म इशरूना, 13वीं किस्म इसमें मकसूर, और 14वीं किस्म गैर जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ क्या हो? मुज़ाफ हो। तो ये 5 किस्में किसकी पढ़ी हैं? इसमें मुतमक्किन की वजूह इराब के एतबार से। कुल कितनी किस्में थी? 16। कुल कितनी किस्में थी? 16। तो आज हमारी कितनी किस्म मुकम्मल हो गई हैं? आज 14 किस्म मुकम्मल हो चुकी। कितनी किस्में? 14 किस्में मुकम्मल हो चुकी।